your first experiment is second A experiment is addition of two 16-bit number by using EMU 8086 emulator. Okay, so first start with clear the flag carry flags. Okay, the instruction is CLC. CLC means clear carry flag. Okay, so what is the first instruction? CLC. ठीक है, then start with move move AX comma 1 2 3 4 H. ठीक है, तो here 1 2 3 4 H is a 16 bit 16 byte long. Okay, so here 34 is the lower and 12 is the higher bit. Okay, what is the mean of move AX comma 1 2 3 4 H? Okay, move means this basically this is your data is moved to the AX register. Okay, this is your data move right to left. ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ पे BX लिख दिया है, तो BX इज अनदर रजिस्टर जनरल पर्पस। जो भी डेटा होगा वो मूव कर जाएगा कहाँ, आपके रजिस्टर्स में। ठीक है, इन 8086 वी हैव 4 जनरल पर्पस रजिस्टर, all registers are 16 byte long. Okay, first is your AX, second is your BX, third is CX, and next is DX. Okay, and this is these registers are in pair. This is L and this is H. Okay, this is the L stores the lower byte of data and H stores the higher byte of data. Okay, so in this case when we write move AX comma 1 2 3 4 H, if you write any number, please add H after writing any number. In the case of you write program in EMU 8086 emulator, always after the number add H. So here this is your register pair, each register store 8 bit of data. So this is your lower bit and this is your higher bit. Lower bit data stored in L, so 34 move to the AL register and 12 move to the AH register. Okay, तो अगर एडिशन करना होगा तो एडिशन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डेटा क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। तो ये दिस इज AX इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये जो रजिस्टर्स हैं बने होते हैं किसके, फ्लिप फ्लॉप के। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप्स के बने होते हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर्स के क्या होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है, तो कोई भी डेटा टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करना होता है तो आप इन रजिस्टर्स में क्या करते हो, स्टोर करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा मैंने स्टोर कर दिया इन AX रजिस्टर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MOV मूव, क्योंकि एडिशन करना है 216 बिट डेटा का, तो नेक्स्ट डेटा भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा। देन
mov move bx, we choose the next register bx, and again store data 1 2 3 4 h. Okay, so what is the mean of move bx comma 1 2 3 4 h? Means the data, this is your data, move to the bx register. Bx is a 16-bit register, so this is your lower bit and 12 is your higher bit. Lower bit is stored in the lower register and higher bit is higher bit data is stored in higher bit 12. Okay, so in this case, we store the two numbers. Next, apply addition mnemonics. Write down add. Add is used for addition in the case of your microprocessor assembly language. Okay, add a x comma b x. Okay, so in this case, the content of bx added with content of ax and store again in ax. ठीक है, तो होगा क्या, bx का जो bx रजिस्टर में जो डेटा होगा, ठीक है, और ax रजिस्टर में जो डेटा होगा वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देन अगेन ये जो डेटा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बाय कंटेंट ऑफ ax रजिस्टर डेटा। ठीक है, जो डेटा होगा ax रजिस्टर का वो ऐड होगा bx के साथ। देन फिर क्या होगा, एडिशन जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो अगेन क्या होगा, आपके ax में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज send. This is your ax is your also called accumulator. Send accumulator data to the suppose send to the source index. So next instruction is move move space large bracket si comma ax. Okay, so in this here ax stored the result sent to the source index, and next write down hlt. After the, if you write hlt here, your program is terminated. Okay, so try with the help of software, same program. Everyone open your emu 8086 software and try parallelly with me. Okay, so this is your workspace, and start with the first instruction. Write down first clc. Clc means clear carry flag. Then press enter key. After that write down mov move ax comma 1 2 3 4 h. Press enter key. In this instruction, we store data, or we transfer data to the ax register. Next instruction is again store or save
next data to the another register. Suppose my next register is a bx. Write down bx comma 1 2 3 4 h and press enter key. Next instruction is write down add ax comma bx, means the content of bx added with ax, and answer of two registers data, summation of two register data again store to the ax or accumulator. ठीक है, तो क्या होगा, आपका बी एक्स ए एक्स का डेटा ऐड होगा, देन क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो ए एक्स में ए एक्स रजिस्टर के डेटा से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। मींस आंसर आपका ए एक्स या एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। देन अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट send address send answer of answer of these addition these result to the source index. So next instruction is write down mov space use large bracket si close bracket comma ax and press enter key and write down hlt and go to emulate. Okay, so this is your register. So these are general purpose registers. General purpose register. These are general purpose registers. I'm already told you AX, BX, CX, and DX. These are HL pairs. This L stores the lower bit of data, H stores the higher bit of data. When we click on single step, in this step, first clear the flags, all carry flags, and then when click on again single step, so our next instruction is move AX 1 2 3 4 H, means this is your data stored in your AX register. Okay, so this is 34 is the lower bit store in the L and higher bit store into the H. Okay, so click on single step. Single step is done. Clear all carry flags. Next, click again single step. In single step, the first data stored to the AX register. Uh, 34 is the lower bit is stored in the L, and 12 is the higher bit stored in H. Okay. Next, when we click again in single step, the next instruction is move bx comma 1 2 3 4 H, means repeat same action, but in this case our register is different. Okay, the same data is stored in a bx register, lower bit stored in the lower register pair and register, and higher bit stored in the higher register. Okay, so in this case 34 is the higher bit data, 34 is the lower bit data stored in the bl, and 12 is the higher bit is stored in the BH. Okay, and click again, single step. 34 is the lower bit is stored in the BL, and 12 is the higher bit data is stored in the BH. Okay, in the next instruction, add BX comma AX comma BX, means the AX contains some data and BX contains some data. When we execute a second line, then the content of BX added with the content of AX, and AX data replaced with the answer. Okay. Okay. So what is the answer? In this case,
When we add 1, 2, 3, 4, add with 1, 2, 3, 4. Answer is 8, 6, 2, 8, 6, 4, 2. So 24 is a higher bit and 64 is a lower bit. So 24 is stored in the higher bit and 64 is the lower bit stored in the AL. Okay. Next step, when we click on single step, the here this is your source index address. This is your source index address. SI address is 4 times 0. Okay, so in this case, when we execute a next instruction, move bracket si comma ax, the content of ax move to the si. In present time, content of ax is 2468. It's a lower bit and this is your higher bit. Okay, in the case of memory, when we visit the memory stored the data in reverse order. First store the lower bit and second store the higher bit. Okay, so in this case answer is 6824. When we uh, see answer in your memory, okay, or source index, and click again single step, then your program is terminated or halted. Okay, your emulator is halted. Press OK. Then go to view and click on memories. This is your base address. In base address, select source index address is 4 times 0. Click on update. Write down 4 times 0 and click on update. Okay, this is your okay. So 64, in the case of memory, 64 is the lower bit data and 24 is the higher bit data. Okay, in the case of memory, it store the data in reverse order. First store the lower bit, then store higher bit. Okay, so this is your answer. Everyone try on your PC. Everyone got the result. सर एक बार वो दिखाना मेमोरी फिर से, कौन सा? जो आपने अभी मेमोरी दिखाई थी। सर इसमें सर ये बाकी डिजिट्स क्या हैं, 34 12 BB वगैरह ये सब? ये चीज़ जैसे पहले कोई भी अगर सपोज करो कुछ सेव किया हो रहा होगा मैंने, तो वो तुम्हारा एज इट इज शो कर रहा है इसको, मतलब मेमोरी में अपडेट नहीं किया है, ये पहले का जो डेटा था वो तुम्हारा शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ये अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 16 बिट नंबर, ठीक है। तो अब आप में से कोई एक अपना डेस्कटॉप स्क्रीन शेयर कर दो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप करोगे तो अगर वहाँ एरर आएगी तो मैं देख भी सकूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो anyone can share your desktop screen with all student. देवव्रत आप ही कर दो अपने स्क्रीन और प्रेजेंट। सर एक से
एक सेकंड बस। सर अभी ना मैंने साथ साथ में करा नहीं था जो आप कह रहे थे, मतलब अभी सिर्फ देख रहे थे जो आप कर रहे थे, तो फिर ब्लैंक स्क्रीन ही ओपन करी है, बस वो ओपन करा हुआ था, करा हुआ है। सर एक बार बता दो स्टेप वाइज कैसे करना है दोबारा। Okay, click on new यस सर। and select empty workspace. यस सर। Click on OK. Okay, this is your empty workspace. First, यस सर। write down first instruction. Your first instruction is CLC. CLC means clear carry flag. यस सर। ठीक है, तो if suppose your any carry flag is high, when we execute CLC instruction, all carry flags are reset. Okay. Next, second instruction is MOV. Write down MOV space AX comma 1234H. Okay. So 1234H is your 16 byte long data, and H added after the number, always in our emulator added H. Okay. सर ये डेटा या फिर एड्रेस लोकेशन है? Then 1234H is the your data. ओके ठीक है, थैंक Erase L. I think you write down L. Only write H after the number. ओके। सर आज जो क्लास करी थी ना, जब हमने क्लास लगी थी आज, उसमें सर इसको सर ने कहा था कि एड्रेस लोकेशन है ये वाली। नहीं नहीं, एच तो यहाँ पे डेटा होता है, ये एड्रेस तो है नहीं, क्योंकि आप नंबर ऐड करोगे तो एड्रेस को आप थोड़ा ऐड करते हो। यस सर। एड्रेस मीन्स तो लोकेशन होता है आपका, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, उसका पाथ होगा। ठीक है। ओके, क्लिक ऑन एंटर। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MOV BX space BX. BX is the second register. वो थोड़ी नॉइज आ रही है पीछे, इसलिए सर एक बार दोबारा बताना। Okay. Okay, BX is your next register, comma. Again, write down 1234H. Okay, so we store the two data. First data is stored in the AX register, and second data is stored to the BX register. Okay, don't write down uh, L. I think you write down L after the H or cursor. Okay, click on enter. Okay, so in this here we store two data in two different registers. Next instruction is add two register data with the help of ADD AX space AX comma BX. AX comma BX. In this case, the content of BX added with content of AX, and again result stored to the accumulator or AX register. ठीक है, तो क्या होगा आपका जो BX से X का डेटा ऐड होगा, देन अगेन क्या होगा आपका डेटा फिर से कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, AX रजिस्टर में। ठीक है, प्रेस एंटर की। ठीक है, तो योर आंसर स्टोर इन योर AX रजिस्टर। Next case, you transfer the you transfer the data to the source index. So next instruction is MOV use the last bracket A
use large bracket, write down si is source index, bracket close, comma, comma, ठीक है। अब देखो डेटा कहाँ पड़ा हुआ है इस समय, सर AX में ठीक है, तो ax लिख दो वहाँ पे आप, ax, click enter, press enter key, and last step is write down hlt। अगर halt नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, रन, अगर सपोज और इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है तो नेक्स्ट एड्रेस पे प्रोग्राम रन करता रहेगा, इसीलिए HLT इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टर्मिनेट द प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन एमुलेट। ओके, तो दिस इज योर emulator, you run step by step। First, you click on single step, your or carry flag, or your or carry flags are clear, again click on single step, and next step, the content, the data 1 2 3 4 stored to your HL pair, click on single step। Okay, I think you clearly visual the the data stored in HL pair। Okay, again click on single step, second data is also stored in your second register, and click on next instruction, add। Okay, when you click on add ax comma bx, both register data are added, and result stored again ax register, ठीक है। तो ax का देखो जो रजिस्टर का डेटा था अपडेट हो गया, आंसर इज 2468। देन अगेन क्लिक ऑन सिंगल स्टेप। ओके, the accumulator data sent to the source index, and again click on run single step, your program is hearted। Okay, the next step is in emulator, click on view, in emulator menu click on view, select memory, and update the address, base segment address is 0100, after the 100 add, write down 4 times 0 and click on update। ओके, आंसर इज 2468, ठीक है। तो आपका आंसर स्टोर हो गया, फर्स्ट स्टोर द लोअर बिट एंड सेकेंड एड्रेस स्टोर द हायर बिट। ओके, दिस इज योर first program। Next, start with the second program is add subtraction of two 16-bit data by using EMU 8086 simulator। Okay, to start with again CLC, write down MOV AX comma, write down data 1 2 3 4 H, and again write down MOV, in this case use take next another register, in this case choose the CX register, and write down data is 1200 H, press enter key, and next instruction is SUB sub AX comma CX। Okay, when you write sub x ax comma cx, uh, the ax register data subtracted with cx and stored again ax or accumulator। Okay, next step, send your result to the your source index, to write down si comma ax
and last write down HLT and click on emulate. ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, when you click on single step, then all clear the carry flags, then click on again single step, then data 1 2 3 4 H store your AX register, and then again click on next step, the next data 1200 H store to the CX register. In this case, the register are different. In previous case, we use uh, BX register, but in this case, we use a CX register. Next, when you click on against SUB single step, then next section is SUB AX comma CX. The content of AX is subtracted with content of CX and result stored in your CX. So answer is 34. 34 is stored in your AX register. And when you click on single step, the result stored to the source index or sent to the source index. Again click on single step, your program is terminated. Okay, click on OK. Click on OK. सर इस केस में यहाँ पे एसआई में तो आया नहीं है, जैसे यहाँ पे एसआई में आया नहीं है। नहीं, SI is the source index. This is your address. ठीक है, सोर्स इंडेक्स का एड्रेस है, वहां पे दिखेगा नहीं, वो केवल अच्छा एड्रेस ठीक लिखा है, हुआ है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, क्लिक ऑन ओके. अगेन गो टू व्यू and select memory and update the register, update the memory location. Your source index is 4 times 0. Click on update. Answer is 34. Okay, this is your answer. सोर्स इंडेक्स वाला पॉइंट बताना एक बार कि वो इसमें क्यों नहीं विजिबल हुआ था, सोर्स इंडेक्स वाले रजिस्टर में। नहीं, दिस तो ये बेसिकली है कि आपका एड्रेस लिखा हुआ है ना, 4 टाइम्स 0 इज योर एड्रेस, ना कि डेटा दिख रहा है. ये डेटा अच्छा नहीं ठीक है, लिखा ठीक हुआ है, है दिस इज योर एड्रेस. सर, मतलब ये इंडेक्स रजिस्टर, ये पॉइंटर्स टाइप होते हैं ना। हाँ, मतलब ये आपका बस एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है, ना कि डेटा को इंडिकेट कर रहा है ये. ओके कूल, थैंक Okay, next is multiplication of 8-bit data. तो देवव्रत के अलावा कोई और प्रैक्टिस करना चाहेगा? आशीष, Yes, sir. present your desktop screen. Yes, sir. Sir, is it visible? It's visible. Okay, first store 8-bit number in your 8-bit register. ठीक है, आपको क्या करना है, दो डेटास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल इन टू डेटास. फर्स्ट क्या करना है, टू डेटास को स्टोर करना है इन योर 8-bit रजिस्टर. देन क्या करना है, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करना, अप्लाई करना है. देन इस अगेन जो आंसर है उसको सोर्स इंडेक्स पे सेंड करना है. इतना काम करना है टास्क. ठीक है, तो सबसे पहले 8-bit डेटा में सपोज को मुझे कोई भी डेटा स्टोर करना है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MOV. ठीक है, AL. ठीक है, मैंने क्या बोला था, देखो AX होता है आपका 16-bit. अगर मुझे सपोज करो 8-bit इसका यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, वहां पे AL लिखूंगा, AL कॉमा. ठीक है, सपोज करो मैंने डेटा लिख दिया, डेटा इज 02. ओके, H प्रेस इंटर की. अगेन राइट डाउन MOV
ठीक है. Next, use BL, comma 04, write down H, press enter key. Okay, so basically 2 and 4 are two data. Here we store two data in two registers, AL and BL. Next, write down, next instruction is MUL BL. ठीक है. This is your instruction for not write down AL. It's automatically multiply with your accumulator by default. ठीक है. जो भी आपका डेटा होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन स्टोर कहाँ हो जाएगा आपका, AL में. ठीक है. प्रेस इंटर की, राइट डाउन MOV, use large bracket SI and write down AL. ठीक है. Because answer is stored in your AL register, and write down HLT and click on emulate. Okay. First, okay. So when you click on single step, the data 0H, 02H stored in your AL register, and AL is a 8-bit register. And again click on a single step, the content, the 04 data stored in your BL register. BL is again 8-bit register, and when you click again MUL, click in single step, the data of AL and BL multiply with the AL register and again stored to the AL register. And when again click on single step, the answer of AL is stored to the or sent to the your source index. And last, when click on single step, your program is halted. Okay, the answer is 08 sent to your source index. Check with the help of view. Go to view, click on memory, and update the address is 000. Your answer is 08 store in 000 memory location. Okay, you got the result. ठीक है. तो नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आया. ठीक है. या तो आप देखो डायरेक्टली, अगर आपको यूज करना है, अगर 16 बिट तो आप क्या लिखोगे, AX लिख दोगे. अगर सपोज को 8 बिट यूज करना है तो आप क्या लिखोगे, AL लिखोगे. ठीक है. और हायर बिट स्टोर यूज करना है तो आप क्या लिखोगे, AH लिखोगे. ठीक है. योर नेक्स्ट program is, fourth program is division of two 8-bit data. Okay. Other than Assis, present your desktop screen. Nishant. Just a second, sir. Visible is a screen. Okay, so start with your fourth
part. Fourth part is division of two 8-bit number by using EMU 8086 simulator. Okay, so first to clear the flag, the first instruction is CLC, click enter or press enter key, and next store data in your registers. Write down MOV space AL comma 08, press enter key, 08H, press enter key, write down MOV BL comma 02H, press enter key, write down DIV CL DIV BL. ठीक है, तो by using div vl means al data divided with your bl data and answer stored again in your accumulator. ठीक है, तो your accumulator data is updated. Next, store the content of al is stored in your source index by using mov use large bracket si bracket close comma al, press enter key, and last write down HLT and click on emulate. Okay, run step by step. In first step your all flags are clear, carry flags are clear. Next, when you click on single step, your data stored in your AL register. Again click on single step, your next data stored to your BL register. Again click on single step, your AL data divide with the BL register data and stored to your AL register. And next step, again click on single step, the content of ALs are sent to your source index address data. Okay, and again click on single step, your program is hearted, click on OK. Okay, and check the answer, click on view, select memory and update the memory location. Select the source index address is 4 times 0, click on update. Your answer is 4. Okay, you get the answer is 4. Okay, इतना समझ में आ गया सबको? Okay, so next program is to add two binary number each 8 byte long. ठीक है, या बाइनरी या हेक्साडेसिमल या डेसिमल नंबर. ठीक है, first I present my desktop screen to all. Okay, so in this program, suppose we have a data store in your some addresses, like I suppose we have two address. Okay, suppose we have 500 0501
0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507. ठीक है, दिस इज योर सोर्स इंडेक्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन इंडेक्स। ठीक है, तो डेस्टिनेशन इंडेक्स एड्रेसेस आर 0508, 0509, 050A, 050B, 050C, 050D, 050E and 050F। ठीक है, this is your source index, this is your destination index. In source index 0500, suppose you store 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 07, 08. Again in destination index 0508, suppose you store 01, ठीक है, you store 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 and 08। ठीक है, so this is your source index addresses and this is your destination index addresses. In source index started with 0500, store 1, 501, store 2, 502, store 3, 503, store 4, 504, store 5, 505, store 6, 506, store 7, 507, store 8, and 508 store 1, again 1, 9, 2, A3, B4, C5, and D6, E7, and F8. Okay, so in this case we add source index data with your destination index data। ठीक है, तो tell me what is the step used here, anybody? Tell me the simple logic used here. सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन, समझ नहीं आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स पे डेटा रखा हुआ है, तो इसको अगर ऐड करना है सोर्स इंडेक्स के डेटा को इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ में, तो सिंपल लॉजिक क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? सर एक सर पहले ऐड लिखेंगे, फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट एस आई कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट डी आई। अच्छा ठीक है, और कोई? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे? फर्स्ट राइट डाउन CLC। CLC मीन्स क्लियर कैरी फ्लैग। ओके, नेक्स्ट CLC is a 1 byte instruction, so suppose this is a 400 address. Next address is available here is 40401. Suppose my in next instruction please start a counter। ठीक है, our counter is CX, so write down MOV CX comma 0004H। so CX is your counter, your counter you use a counter or addition your data। ठीक है, here we use counter 4 times because CX is CX counter acts at 16 bit। okay, so here we use 4, okay, half times।
Okay, then next is write down this instruction is 3 byte. So next memory location available is 0404. Okay, your next instruction is mov move si comma 0500h. ठीक है, your source index is initialized with this memory location. ठीक है, next is initialize destination address. So these are again 3 byte data, 3 byte instruction. So next memory location available is 407. तो राइट डाउन MOV. ठीक है, अभी सोर्स इंडेक्स को मैंने इनिशियलाइज किया है इस एड्रेस से. अब डेस्टिनेशन को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा. तो क्या लिखूंगा मैं, DI कॉमा, तो डेस्टिनेशन का एड्रेस कहाँ से स्टार्ट है, 0508H. ठीक है, और सोर्स इंडेक्स कहाँ स्टार्ट था, 0500 से. तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया था, 0500H. ठीक है, अब मैंने क्या किया है, काउंटर स्टार्ट कर दिया है. काउंटर को मैंने स्टार्ट कर दिया 4 टाइम्स. क्यों, क्योंकि CX ये क्या है आपका, ये जो डेटा है 8 बाइट का है. ठीक है, तो सब पे कितना है, 8 बाइट स्टोर है. ठीक है, तो CX मैंने एज अ काउंटर यूज़ किया हुआ है. CX 16 बाइट का है. तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका A1 टाइम्स में क्या करेगा, 2 एडिशन को क्या करेगा, ये परफॉर्म कर देगा. ठीक है, तो फर्स्ट 500 is added with 508 and 5001 added with 509. ठीक है, तो काउंटर अगर आपका एक बार चलेगा तो 2 डेटा को क्या करेगा, ऐड कर देगा. इसीलिए क्या किया मैंने, ठीक है, 1 2 3 4. इसीलिए CX की वैल्यू क्या रखा है मैंने, 4. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, सोर्स इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया दिस एड्रेस से, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस को मैंने इनिशियलाइज कर दिया दिस एड्रेस से. देन आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन MOV, राइट डाउन. तो दिस इज your next instruction is 040. A is our next memory location because this is again 3 byte long. So next instruction is MOV move AX comma SI. ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सोर्स इंडेक्स का एड्रेस है. ठीक है, अब सोर्स इंडेक्स का एड्रेस प्रेजेंट टाइम में क्या है आपके पास, 0500. ठीक है, यहाँ पे जो डेटा होगा वो डेटा क्या है, बेसिकली 01. वो कहाँ चला जाएगा, आपके AX रजिस्टर में. ठीक है, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, ठीक है, दिस इज योर 2 byte long instruction. The next address is 040C. तो next instruction is MOV move. ठीक है, okay, next instruction is ADC bracket DI कॉमा AX. ठीक है, तो AX पे डेटा क्या पड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, 01. ठीक है, ऐड किससे हो जाएगा, DI का एड्रेस क्या है, 0508. डेटा क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, 01. तो 1 एडेड विथ 1. ठीक है, और अगेन जो आपका देखो, जो यहाँ पे लिखा होता है राइट हैंड साइड में, वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अपडेट. तो इस समय डेस्टिनेशन इंडेक्स लिखा हुआ है. तो डेस्टिनेशन इंडेक्स पे जो भी आंसर होगा, ठीक है, जो भी डेटा होगा, ठीक है, सपोज करो 01 पड़ा था, वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, 02 से. ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके डेस्टिनेशन एड्रेस पे अब डेटा क्या आ गया, 02। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, ठीक है, दिस इज अगेन 2 बाइट लॉन्ग। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन अवेलेबल हियर 040E। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज increment in your SI, increment your SI। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये काउंटर 1 टाइम चला तो एडिशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, किसका किसका हो जाएगा, 0500 का भी हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा आपका 0501 का भी एडिशन किसके साथ हो जाएगा आपका 0509 के साथ, 0509 के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट का क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट आपको क्या करना, ऐड करना है 0502 और 0503। ठीक है, तो इंक्रीमेंट क्या करना पड़ेगा, लेकिन एड्रेस क्या है सोर्स इंडेक्स का प्रेजेंट टाइम में 0500। मुझे कहाँ पे आना है 0502 पे, तो मुझे 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा सोर्स इंडेक्स में इंक्रीमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा INCSI, अगेन दिस इज योर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट डाउन अगेन 40F INCSI। ठीक है, तो 2 टाइम्स अगर मैंने SI लिख दिया है तो प्रेजेंट एड्रेस क्या हो जाएगा इसके पास अब 0502। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स इंडेक्स में तो हम कहाँ पहुँच गए 0502 पर, डेस्टिनेशन को भी कहाँ स्विच करना पड़ेगा 050A पे। तो अगेन आप क्या लिखोगे, अगेन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 0410 यहाँ पे क्या लिखोगे आप INCDI। ठीक है, तो यहाँ अपडेट क्या हो जाएगा 509। फिर से आप क्या लिखोगे यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस आपका 0401, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन था INCDI। तो फिर से मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 050 0510। ठीक है, देन आपको क्या करना पड़ेगा डिक्रीमेंट, क्योंकि 1 स्टेप आपका क्या हो गया है, डन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा काउंटर में डिक्रीमेंट। तो नेक्स्ट राइट डाउन 04012, राइट डाउन INC सॉरी, डिक्रीमेंट करना है काउंटर में। यहाँ क्या लिखूंगा मैं DECCX। ठीक है, तो काउंटर में डिक्रीमेंट किसका हो जाएगा 1 का। ठीक है, अब काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज अगेन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन अवेलेबल हियर 04013, राइट डाउन JNE। ठीक है, जंप नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो किस एड्रेस पे आपको जंप करना है, आपको जंप करना है ठीक है, जंप कहाँ पे करना है आपको 040A पे। ठीक है, फिर आप जंप कर जाओगे कहाँ पे, इस एड्रेस पे। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, अभी सोर्स इंडेक्स आपका अपडेट हो गया है। अपडेटेड सोर्स इंडेक्स क्या है आपके पास 502। अपडेटेड सोर्स इंडेक्स क्या है 502। डेटा क्या पड़ा हुआ है 502 के अंदर 03। ठीक है, 16 बाइट है काउंटर की वैल्यू, 502 भी आ जाएगा एंड 503। ठीक है, 503 पे क्या पड़ा हुआ है 04। ठीक है, देन जो आपका ये डेटा है, दिस इज योर लोअर बिट एंड दिस इज योर हायर बिट। ठीक है, ऐड हो जाएगा किससे, डेस्टिनेशन इंडेक्स के डेटा से। डेस्टिनेशन इंडेक्स पे डेटा क्या पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, पहला तो पड़ा हुआ है आपका 509, देन क्या पड़ा हुआ है आपका 5110।
ठीक है, डेटा क्या है यहाँ पे आपका 3 and 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपने इसको फिर से क्या किया हुआ है, जो ये डेटा है आपने देखो AX लिखा हुआ है, AX लिखने की वजह से क्या होगा, जो आपका AX पेयर में आपका क्या होता है, यहाँ पे AH होता है और क्या होता है AL होता है। तो AL में जाके स्टोर हो जाएगा आपका 03 और AH में क्या स्टोर हो जाएगा आपका 04, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे जब आप क्या लिखोगे ADC ब्रैकेट DI AX, ठीक है। तो DI पे एड्रेस क्या पड़ा हुआ है 509 5010, ठीक है। तो इस लोकेशंस पे जो आपका एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा AX के डेटा से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 and 8, ठीक है। 6 and 8 वो अपडेट कहाँ हो जाएगा DI पे, ठीक है। तो यहाँ पे DI का आंसर वो अपडेट होता चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा आपका 6 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। फिर से आपने क्या किया यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, ठीक है, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट होके जो करंट एड्रेस होगा यहाँ पे, अभी आपने क्या किया अपडेट किया, तो सोर्स इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो गई यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखोगे 50503, यहाँ पे अपडेट करोगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0504, ठीक है। यहाँ पे जब आप अपडेट करोगे, ठीक है, कितना था ए था, यहाँ पे क्या था आपका ए था 50 ए था, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका 050 बी, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 050 सी, ठीक है। फिर से आप क्या करोगे डिक्रीमेंट करोगे काउंटर में 2, ठीक है। फिर से आप क्या करोगे JNE जंप नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपकी CX की वैल्यू क्या नहीं है 0 नहीं है, तो फिर से आप जंप कहाँ कर जाओगे इस वाले एड्रेस पे, फिर से सेम प्रोसीजर होगा, कब तक चलता रहेगा जब तक CX की वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी 0, और CX की वैल्यू तब 0 होगी जब आपके सारे एडिशंस क्या हो जाएंगे परफॉर्म हो जाएंगे सारे एड्रेसेस, ठीक है। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर आपका 0 हो जाएगा तो जंप नहीं करेगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 5 पे HLT, ठीक है। ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन था, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा यहाँ पे 0415, ठीक है। समझ में आया। सर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है कि जंप लेस देन 4 रख सकते हैं, जंप लेस देन 5 रख सकते हैं? जंप लेस देन 5। हाँ नहीं, क्यों नहीं, रख क्यों नहीं सकते, ऐसा भी हो जाएगा। सर फिर हम मतलब काउंटर को डिक्रीमेंट करने के बजाय इंक्रीमेंट कर लेंगे ना, अगर जंप लेस देन 5 रखेंगे। कोई आप देखो कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, इस यहाँ पे तो मैंने ये यूज़ किया है। आप जो आपके पास वैलिड इंस्ट्रक्शन है आप उसका यूज़ करके किसी भी तरीके से बना सकते हो, एक प्रोग्राम को कई तरीके से बनाया जा सकता है। मैंने तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक यूज़ किया है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बार बार कर क्या रहा हूँ मैं, बेसिकली मैंने काउंटर की वैल्यू, मुझे पता था कि डेटा मेरा कैसा है 8 बाइट है, तो 8 बाइट है और मैंने यूज़ कर लिया था 16 बाइट रजिस्टर, इसीलिए मैंने 4 टाइम्स ही काउंटर को चलाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ CX की जहाँ पे अगर मैं CL ले लेता, ठीक है, तो मुझे 8 टाइम चलाना पड़ता अपना काउंटर, ठीक है। तो 8 टाइम्स बार बार लूप चलता, ठीक है। तो 8 टाइम्स चेक करता कि 0 हो रहा है कि नहीं काउंटर की वैल्यू, जब 0 हो जाएगा तो फिर हाल्ट हो जाएगा प्रोग्राम। तो सिंगल सिंगल आपका फर्स्ट सोर्स इंडेक्स मतलब 500 ऐड होगा किससे 508 से, फिर जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर 501 ऐड हो जाएगा किससे 509 से, लेकिन डायरेक्टली मैंने 16 बिट यूज़ किया है तो वन टाइम में ही क्या हो जाएगा आपका 500 एंड 508 ऐड हो जाएगा और 501 और 509 भी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसको ट्राई करना है आपके सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। एक बार रन करके देखना है कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो सबको ट्राई करना है ये। मैंने बता दिया लॉजिक, एक बार आप खुद से ट्राई करो। मेमोरी अपडेट करना मैंने आपको बता दिया, मेमोरी कैसे आप अपडेट करते हो। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा। या अभी किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप पूछ सकते हो। सर यहाँ पे हमने जो ये रजिस्टर्स हैं, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स वाले, इनको हम एज जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज किया ना। नहीं, जैसे हमने क्या किया है, जैसे सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स एड्रेसेस पे हमने क्या किया है, डेटा डाल दिया है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से मेरा सोर्स इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा डेस्टिनेशन इंडेक्स है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, सोर्स इंडेक्स के डेटा को AX में डाल दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टली AX के डेटा को, जो AX, क्योंकि सोर्स इंडेक्स का पे जो डेटा था वो AX में चला गया है, अब AX के डेटा को डायरेक्टली हम ऐड कर दे रहे हैं सोर्स इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ उससे। ठीक है, AX लिखा है मैंने, तो HL पेयर होगा, HL पेयर में दो डेटा स्टोर हो रहा होगा, मतलब 500 का और 501 का। तो डायरेक्टली क्या होगा, 500 और 501 ऐड हो जाएगा डेस्टिनेशन इंडेक्स पे जो मेरे डेटा पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर जैसे ही ऐड हो जाएगा वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा। फिर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है 2 टाइम्स। ठीक है, तो 500, सपोज करो मैं 500 पे हूँ तो मुझे 502 पे आना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स जब इंक्रीमेंट करूंगा तो 502 पे आ जाऊंगा मैं। इस तरह डेस्टिनेशन इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करोगे तो आप कहाँ आ जाओगे, 508 से 50 ए पे आ जाओगे आप। फिर जब एक प्रोसेस हो जाएगा, 1 टाइम्स एडिशन हो गया, फिर दूसरे को एडिट मुझे क्या करना है, 502 और 503 को ऐड करना है, वाले को ऐड करना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटर की वैल्यू मैंने डिक्रीमेंट कर दी है 1 से। ठीक है, और फिर उसके बाद काउंटर की वैल्यू चेक किया हूँ, 0 नहीं है, तो फिर से मेरा क्या रिपीट करेगा प्रोसेस, कहाँ से, फिर से जो सोर्स इंडेक्स का जो डेटा पड़ा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, AX में। ठीक है, तो AX का जो डेटा पड़ा रहा होगा पहले का, ठीक है, 5 क्या पड़ा हुआ था वहाँ पे, सपोज करो 0 1 और 2, अब वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 0 3 और 0 4 से। ठीक है, फिर से क्या होगा, अब 0 3 और 0 4 वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा किससे, डेस्टिनेशन इंडेक्स के एड्रेस से। ठीक है, फिर क्या होगा, डेस्टिनेशन इंडेक्स का डेटा रिप्लेस हो जाएगा किससे, 6 एंड 8 से। देन क्या होगा, फिर से मुझे 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस 502 था, तो अभी मुझे 504 पे आना है, तो 2 टाइम्स अपडेट कर दिया मैंने, 503 504 पे आ गया। ठीक है, इसी तरह डेस्टिनेशन इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा, 50 ए पे था, 050 ए पे था, तो 50 सी पे आना होगा। तो फिर से मुझे 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दिया, मैं वहाँ आ गया। फिर से डिक्रीमेंट कर दिया मैंने किसको, काउंटर को। ठीक है, अब 2 हो गया काउंटर का वैल्यू। फिर से क्या करूँगा, चेक किया मैंने, वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर से जंप कर जाऊँगा मैं कहाँ पे, सोर्स इंडेक्स वाले पे। सोर्स इंडेक्स का प्रेजेंट एड्रेस अब हो गया 504, तो 504 और 506 का जो डेटा होगा वो ऐड हो जाएगा 50 डी से और ई से, सॉरी सी से और डी से। ठीक है, अब क्या है, अब वैल्यू 05 और 06 दोनों ऐड होंगे तो 10 और क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, आंसर। फिर से 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दिया मैंने सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स को, पहुंच कहाँ गया मैं, 506 पे और 50 ई पे। ठीक है, फिर से क्या होगा, काउंटर की वैल्यू डिक्रीज कर दी मैंने, 1 हो गया। ठीक है, फिर से चेक किया मैंने, काउंटर 0 नहीं है, फिर से सेम प्रोसीजर होगा, सोर्स इंडेक्स पे एड्रेस क्या पड़ा, 506। ठीक है, और 507, दोनों जो डेटा है 7 और 8 वो ऐड हो जाएंगे डेस्टिनेशन इंडेक्स के डेटा से। फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट कर दिया मैंने एड्रेसेस को। ठीक है, अब कहाँ पहुँच गया मैं, 506 था ना, 508 पे पहुँच गया हूँ। ठीक है, अब फिर क्या हो गया, जो मेरा क्या था, ये भी डेस्टिनेशन इंडेक्स वो भी 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया, कहाँ पहुँच गया,
5011 पे, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर से काउंटर मेरा डिक्रीज हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे चेक हुआ फिर से कंडीशन, तो कंडीशन क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो जंप नहीं करेगा, हाल्ट कर जाएगा। ये लॉजिक था इसमें, ठीक है। तो एक बार आप अपने सॉफ्टवेयर पे ट्राई करो इसे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछना मुझसे। किसी को डाउट हुआ इसमें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये JNE के बाद कौन सा एड्रेस डालना है? जहाँ पे काउंटर वाली लाइन का है ना? ये वाला। तो ये कैसे पता चलेगा ये हमारा ये वाली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे 040A वाली? देखो जब ये हम देखो यहाँ पे, अब तुम अब फिर से यहाँ तो आओगे नहीं तुम, डेस्टिनेशन इंडेक्स, क्योंकि इनिशियलाइज सर। कर दिया तुमने, यस ठीक है। सर। अपडेटेड, अब देखो, अब जब तुमने 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे सोर्स इंडेक्स को, तो नेक्स्ट वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा ही ना। अब यस तो सर। अपडेटेड इंडेक्स है मेरे पास। अब उस डेटा को AX में डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो एडिशन करोगे। सोर्स इंडेक्स पे सपोज करो 502 और 503 अवेलेबल है, तो AX में चला जाएगा। AX में भी तुम्हारा क्या होता है, HL पेयर होता है। तो 502 का डेटा कहाँ होगा, तुम्हारे L में, और 504 का डेटा और 3 का डेटा किस में होगा, AH पे, ठीक है। फिर यस से सर। क्या हो जाएगा, जब ADC यूज करोगे तो AX पे क्या मेरे पास अवेलेबल है 03 और 04, वो ऐड हो जाएगा किस पे, इस एड्रेस के डेटा से। तो इस पे भी क्या अवेलेबल है, 03 और 04, 03 और 04 अवेलेबल है, तो 03 और 04 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर से, और अपडेट कहाँ होगा, देखो यहाँ पे जो लिखा होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है वही अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे DI लिखा है तो डेस्टिनेशन इंडेक्स अपडेट होगा बार बार, ठीक है। इसको अपोजिट भी कर सकते हैं हम, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है AX लिख दिया, मैं जरूरी नहीं यहाँ पे DI कर देता। DI कर देता तो फिर ADC यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, AI, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, AX। उल्टा हो जाता, तब मेरा सोर्स इंडेक्स क्या होता, अपडेट होता, ठीक है। फिर 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करता, फिर इसमें भी इंक्रीमेंट करता DI में, फिर काउंटर को टाइम्स इंक्रीमेंट कर देता, ठीक है। फिर से जंप वहीं पे करोगे जहाँ पे आपको डेटा फिर से क्या करना है, रजिस्टर में डालना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाला लोकेशन क्या किया था, यहाँ पे लिख दिया था कि इसी वाले लोकेशन पे क्या कर जाए, जंप कर जाइए। सर ये लोकेशन हमें पता कैसे लगेंगे, जैसे CLC का जो एड्रेस है वो हमने कैसे इंटरप्रेट किया कि 0400 होएगा? वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे आप बस आपको पता होना चाहिए कितने बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज करो लिख सकता था, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे 400 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं 0300 से स्टार्ट कर देता, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाता, 0301 हो जाता, 1 बाइट था, सर 3 मतलब बाइट। हम अपने कोड में एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं ना जिससे स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, आप कहीं आप, या तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे बेस सेगमेंट जहाँ से लिख रहे हो, या तो अपडेट कर दो अपने हिसाब से, अगर इस तरह लिखना है तो। अदरवाइज आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वहाँ पे क्या एड्रेस चल रहा है आपका, तो उसके हिसाब से आपको ये वाला जस्टिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ये वाला जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है किस एड्रेस पे लिखा है, तो उसके आगे वही वाला आप एड्रेस डालोगे। सपोज करो इस तरह अगर मैं चल रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह चल रहा हूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 30, यहाँ पे क्या आ गया मेरा, 4 आ गया। फिर आ जाएगा यहाँ पे 307, 307, यहाँ आ जाएगा 30A, यहाँ आ जाएगा आपका 30C, 30E, 30F, ठीक है, 310, 311, 312, 313, 315, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे कहाँ पे जंप करना पड़ता, यहाँ पे आप क्या लिख देते आप, 303A, ठीक है। अब आपको इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपने यहाँ से सेव कर रखा है तो।
ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं है, जैसे सोर्स इंडेक्स पे आपने ये एड्रेस ले रखा है, आप कहीं भी स्टोर कर दो, आप 1000 पे स्टोर कर दो इसे, 1001 हो जाएगा, 1002 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, 1000, ठीक है। फिर डेस्टिनेशन को चेंज करना पड़ेगा इसी हिसाब से। यहाँ पे सपोज करो आपने डाल दिया 1008, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1008 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट? एक बार अपने सॉफ्टवेयर पे लिखो तो और भी समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, अपनी अटेंडेंस बोल दो एक बार। सॉरी, 21, Present, sir. 22, 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, 29, 30, Present, sir. 31, 32, Present, sir. 33, 33, 35, 35 present. 34, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, 39, Present, sir. 40। Present, sir. अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ आपको, मतलब मैं बताता हूँ उसमें कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप मुझे फीडबैक दोगे तभी मैं उसके हिसाब से थोड़ा और चेंज करूँगा तरीका समझाने का। तो कहीं 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 पे डाउट आता तो मुझे बता दिया करो। अभी तक जो मैं बताया उसमें कुछ डाउट आया या प्रॉब्लम आई कुछ समझने में? कहाँ पे प्रॉब्लम कुछ आ रही है, कुछ ऐसा मुझसे आप बताओ कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, या क्या कैसे और थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। निशांत। सर वैसे मतलब जैसे आप जो करा रहे हो वो तो समझ आ ही रहा है, मतलब बस थोड़ा सा भी थ्योरेटिकली खुद से समझना थोड़ा बाकी है सर मेरा, मतलब रजिस्टर्स की प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, कैसा डेटा स्टोर करते हैं, एक बार वो मैं कर लूंगा फिर आ जाएगा सर, वैसे आप ठीक करा रहे हो। अच्छा, अभी क्लास में रजिस्टर्स नहीं बताए गए? बेसिकली रजिस्टर कुछ नहीं है, रजिस्टर आपका 8 बिट डेटा क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जब आर्किटेक्चर आप पढ़ोगे तो उस आर्किटेक्चर में आपको दिखाया जाएगा कि आपका ए एक्स बी एक्स सी एक्स रजिस्टर, उसके बाद सोर्स इंडेक्स काउंटर कैसे कैसे यूज़ करना है, जैसे नेक्स्ट टाइम पे हम कैसे और भी काउंटर्स को यूज़ करना है किसी और फंक्शन के लिए, तो वो सब सारी धीरे धीरे हम सीखेंगे।
ठीक है, तो शायद इंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हुआ कि नहीं आपके क्लास में? आर्किटेक्चर आपके सिलेबस में है कि नहीं है माइक्रो प्रोसेसर का, 8086 का आर्किटेक्चर? है सर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर थोड़ा सा जब बताया होगा मैम ने, तो उसमें आपको बता दिया होगा मैम ने रजिस्टर्स के बारे में। बताए से मतलब अभी वो चल ही रहा है ना, मतलब अभी थॉरो नहीं है एकदम दिमाग में कि क्या क्या है, वो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, तो अच्छा वो अच्छा हो अच्छा जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ये सर भी आपके सर जितेंद्र सर ले रहे हैं ना क्लास है, कि पुनीत मैम ही ले रहे हैं सारा लेक्चर? सर दोनों ले रहे हैं। अच्छा, अभी तो मैं मैम अभी जितेंद्र सर ने थोड़े कम लिए हैं, मतलब 1 या 2 लिए हैं आई गेस। अच्छा अच्छा, सर ने क्या करा है अभी? सर ये अभी इंस्ट्रक्शन वगैरह ही पढ़ा रहे थे सर आज की क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे हम, जैसे आप क्लास में थ्योरेटिकल आप करो, बाकी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, जैसे अब अभी तक रजिस्टर्स में आपने देखा भी होगा, जैसे सॉफ्टवेयर में आपने देखा, मैंने दिखाया भी, AX BX में डेटा कैसे आप इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे थे तो मूव कर रहा था, फिर कैसे एडिशन हो रहा था। थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर से हेल्प मिल रहा होगा, कि क्योंकि यहाँ पे तो दिख भी रहा है, किट पे करोगे तो वहाँ पे पता नहीं चलता है कि किस रजिस्टर पेयर में कौन सा डेटा गया। यहाँ तो आप सॉफ्टवेयर पे देख भी पाते हो कि इंस्ट्रक्शन रन करने के बाद डेटा का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको अभी फ्लैग्स के बारे में पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फ्लैग्स भी देख सकते हो कि कौन कौन से फ्लैग इफेक्टेड होते हैं आपके। ठीक है, जैसे सपोज करो ये वाला प्रोग्राम था, मैं डेस्कटॉप पे विजुअल है ना मेरी, ठीक है, तो डायरेक्टली आप जब फ्लैग्स पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी ओवरफ्लो और एक्सेलरी कैरी, ये सारा चीज़ आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो कि स्टेटस क्या है रजिस्टर का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, क्योंकि आप प्रोग्राम रन करके इसको थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट करते हो, आपके गेट में क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, एक प्रोग्राम दे देगा, बताएगा फ्लैग रजिस्टर्स के स्टेटस को बताओ, तो वहाँ पे तो आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं फ्लैग रजिस्टर के अपने स्टेटस, कि कौन सा हाई हो रहा है, कौन सा सेट हो रहा है, कौन सा रीसेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक बार जो मैंने आप प्रोग्राम कराया आपको, एक बार आप ट्राई करना, अगर आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अपने से कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी, तो एक बार इसको ट्राई करो। लॉजिक मैंने सारा बता दिया कैसे करना है, और नेक्स्ट लैब में आप अपना आंसर दिखाना। ठीक है, आप प्रोग्राम सेव कर लेना बना के, और आंसर मुझे क्या करना दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है नेक्स्ट लैब का। ठीक है, ओके, सी यू इन नेक्स्ट लैब। ठीक है, आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। सर एक बार सर जो आपने कोड लिखा